Terry welcome you all. And आप सबको पता होगा we are gathered here. आपने बैनर में भी देखा होगा for a virtual expert speak session for students and teachers as part of the Green School. So आप लोग को पता होगा हम लोग ने बहुत सारे एक्टिविटीज़ की है, बहुत सारे वर्चुअल एक्सपर्ट सेशंस की है, जिसमें to give you a brief background. So I mean, you all must be aware, Terry and Tata Steel Foundation envisioned this Green School project with a focus in 2017 on augmenting the capacities of students of classes 6 to 8 through various activities, चाहे आपके curriculum linkages हो, action projects हो, या capacity building activities हो, on 4 parameters, जो कि है environment, जो कि है energy, waste, biodiversity and forest, and water. Okay, so हम लोग को all these themes, all these years we have been working on the sessions on the themes of on the 4 main themes, but in this time we felt a need कि हम लोग को इस phase 4 में जो कि इस साल है, जो कि on the fourth year है, we felt a need that it should be interlinked with climate change and SDG, Sustainable Development Goals. And basically, to tap the energy of students and teachers across the project locations for climate action at a school level. So in this context, a series of expert speak sessions for students and teachers have been planned in the form of webinars to further train on the themes interlinking with climate change and SDGs, जो कि आप लोग सबको पता होगा, आप लोग sessions attend कर चुके हैं. And today we are gathered here for the virtual experts speak session on the impact of climate change on the local biodiversities for the students and teachers as part of the phase 4 of the project. So, this interactive workshop, we try to aim to orient students to know about biodiversity in the local context. And for this, we are very fortunate today to have with us our expert, Dr. D.S. Shrivastava. He is the secretary at Nature Conservation Society. So we are very grateful that you are here today. And we also are aware of, of the health right now. So we are, despite of your health, you are still being able to, take this session for us. So we are very grateful for you today to have you with us, sir. And before introducing sir and before, moving on to the main session, um, in order to set the context and give you an overview about the issue, we have with us today Ms. Neha, who is a senior fellow and area convener at the Environment Education and Awareness area at TEDI. And you all must be knowing Ms. Neha is also the project in charge. वो ये project जो हम लोग का है Green School project, she is the overall in charge coordinator of the whole project. So without any further delay, I would like to invite Ms. Neha to the floor. Neha, over to you. Thank you, Monmi. Very good afternoon to all the students and teachers. आपको जैसे मौनमी मैम ने बताया कि हमारा ये जो एक्सपर्ट सेशन है इसके अंदर हमने हर टॉपिक के ऊपर जो सेशंस प्लान किए हैं और आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं अलग अलग विषयों पर, चाहे वो ऊर्जा हो, पानी हो, अपशिष्ट हो या फॉरेस्ट या बायोडाइवर्सिटी हो. हमारी उसको हम कैसे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के साथ जोड़ सकते हैं, कैसे वो जुड़े हुए हैं और हम सब उसके साथ क्या-क्या सीख सकते हैं. तो आज हम जुड़े हैं जानने के लिए कि जलवायु परिवर्तन का हमारी वो जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उस पर कैसे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम सबको पता है उड़ीसा और झारखंड दो ऐसे प्रदेश हैं भारतवर्ष के जो कि हॉटस्पॉट्स हैं. और हम सबको पता है हॉटस्पॉट्स वो एरिया होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार प्रजाति के जानवर और बायोडाइवर्सिटी, फूल, पत्ती, पौधे बहुत सारे मिलते हैं. वहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट ग्रोव्स हैं, आपकी बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जो कि इससे लिंक्ड हैं. तो वो जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित हो रही हैं, कैसे उनमें कुछ कमियां आ रही है, क्या कर सकते हैं,
तो उन सबको जानने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम जानते हैं आप सब बच्चों ने बहुत सारा प्रयास किया है अभी तक, चाहे वो प्रयास कर रहे हो हम अपने सीड बैंक्स बनाने में, चाहे वो हम प्रयास कर रहे हो कि हम बर्ड फीडर्स बना रहे हैं, हम बर्ड नेस्ट बना रहे हैं। हमने इतने सुंदर सुंदर बर्ड नेस्ट बनाए हैं अपने घर में मौजूदा घास फूस से, सूखी घास फूस, कॉटन के कपड़े, साइकिल के जो वायर्स होते हैं उनके हिसाब से, थोड़ी सी लकड़ी से हमने हर तरीके का वेस्ट मटेरियल को यूज कर बर्ड्स के लिए बर्ड नेस्ट बनाए हैं, जिनको बर्ड्स ने एक्सेप्ट भी किया और आकर उसके अंदर बहुत सारे अंडे भी दिए हैं। तो मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमने सीड कलेक्ट करे हैं ट्रेडिशनल फूड आइटम्स के, और उनके साथ हमने प्लांटेशन ड्राइव्स किए हैं। हम हर्बल गार्डन्स भी बना रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी बना रहे हैं। बट इसके अलावा और हम क्या-क्या कर सकते हैं, हम बच्चों ने सीखा था पिछले साल इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे पर 22 मई को, कि पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर कैसे कर होता है, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम कैसे उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो हमने कई चीजें हम इसमें सीख रहे हैं, हम धीरे-धीरे प्रयास कर रहे हैं। हम जो आप बच्चे हैं वो खाली खुद प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना ये जो प्रयास है उसके अंदर अपने पेरेंट्स को शामिल कर रहे हैं, अपने बड़े भैया, अपने समुदाय के लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं, जो कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसी चीज को देखते हुए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर डी.एस. श्रीवास्तव सर, जो कि एक जानी-मानी हस्ती हैं, जो कि मतलब वो एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो इस कार्य में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, और वो आज हमारे साथ जुड़े हैं आपको बताने के लिए कि क्लाइमेट चेंज पर झारखंड एंड उड़ीसा की बायोडायवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट आया है, और हम एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। जैसे मौनवी मैम ने बताया, आज उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, उनको कोविड हुआ था, वो रिकवर कर रहे हैं। हमें लगा था सब बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, बट शायद ठंड भी है, कोविड है, थोड़ा-सा उनके अभी मतलब तबीयत नासाज है, और आज हम इसलिए जितने भी सवाल हैं चैट विंडो में लिख देंगे। अगर सर से हुआ तो सर ज़रूर जवाब देंगे, वरना मैं वापस आकर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूँगी। तो इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हम बार-बार अनम्यूट नहीं करेंगे, बट चैट विंडो का पूरा इस्तेमाल करेंगे और अपने सारे सवाल वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है? इसी के साथ ओवर टू यू मॉनमी फॉर इनवाइटिंग डॉक्टर डी.एस. श्रीवास्तव। Yes, Neha, thank you so much. And like Neha have mentioned, we have lots of, lots in store today. So we will be doing it. And so, yeah, moving on to the technical session, like we have mentioned, हम लोग के साथ आज है Dr. D.S. Srivastava. He is the secretary at the Nature Conservation Society. And I'll just give you a brief introduction about Dr. Srivastava as well. So Dr. Srivastava joined as a lecturer in zoology in GLA College, that is in Daltonganj at Palamau in 1968 at the Ranchi University. And he has also retired as a university professor in 2008 from Ranchi University, and also served as professor in charge at the GLA Postgraduate College from 2005 to 2008, that falls under Ranchi University. Dr. Srivastava initiated the biostatus of forest, wildlife, and indigenous people in Palamau landscape of central India. And he has been associated with the Palamau Tiger Reserve since its inception in 1974 for research, documentation, awareness development, eco-development, anti-poaching support, and community-based conservation of forest and wildlife. He assembled local shikaris in and around Palamau Tiger Reserve in 1974 and converted them into a conservationist in 1976, and formed an NGO, that is the Nature Conservation Society, which is still active in supporting the PTR to conserve tigers and its habitat through scientific studies, planning, awareness, development, eco-development, community support, and advocacy. He represented on State Biodiversity Board, Wildlife Boards of Jharkhand, Bihar, and Steering Committee, Project Elephant, Government of India,
and is also representing on preparation of regional action plan of elephants in central Indian landscape. MOFCC is an expert member. So we are very grateful to have you with us today. And despite your health and despite your busy schedule, so sir, without any further delay, I would like to kindly invite you to address the students. Thank you, sir. Thank you very much. Can you hear me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. Yes, sir. Okay. Thank you very much for inviting me. और मैं जैसा मुझे लग रहा है कि बच्चे बहुत हैं इस ग्रुप में, उनके साथ इंटरेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है और उनसे बातचीत करने में बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। तो कुछ तारीफ आपने ज़्यादा ही कर दी। हम लोग अभी भी पलामू तो मेन है, लेकिन पलामू के अलावा झारखंड और बगल में सटा हुआ छत्तीसगढ़ का इलाका और उड़ीसा, ये एक ऐसा फॉरेस्ट बेल्ट है जहाँ पर कि यदि हम लोग देखें तो इंडिजिनस कम्युनिटीज हमारी हैं, जिनके पास नॉलेज का भंडार है। वो सदियों से इसी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बीच रह रहे हैं। उनसे उनका रिश्ता इतना पुराना है कि कहने का नहीं। उनसे सब कुछ सीखने को मिलता है। मेरे बहुत से मेडिसिनल प्लांट के जो ज्ञाता हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी इसी कम्युनिटी से आते हैं। तो एक नॉलेज के भंडार के साथ ये पूरा इलाका बायोडाइवर्सिटी की खान कह सकते हैं, चाहे एनिमल की वेराइटीज हो, क्योंकि एक छोटा नागपुर प्लेटो का ये भाग ऐसा भाग है जो कि साउथ की ओर ढलने पर ये डेक्कन पेनिनसुला की तरफ जाता है। नॉर्थ की तरफ जो पलामू का भाग है, जो धीरे धीरे बिहार में मिलता हुआ गंगेटिक प्लेन की ओर पड़ता है। साउथ यदि हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो संथाल परगना का जो रीजन है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मिक्स होता है। और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जो भाग अंबिकापुर का है, ये हमारा सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप का सतपुड़ा कनेक्टिविटी है। तो एक ऐसा ही रीजन है जिसमें कि हर तरह के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बायोडाइवर्सिटीज का एक तरह से माइग्रेटरी रूट भी रहा है। और ये इसके अंदर बहुत सी चीजें समाई हुई। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, सरंडा हमारा ये साउथ साइड में है, उड़ीसा से लगा हुआ। और यहाँ पर हम लोग को फ्लाइंग स्क्विरल भी मिलती है और किंग कोबरा भी मिलता है, जबकि पलामू साइड में हमारे पास ये नहीं है। ये स्पीसीज हमारी बहुत सी नॉर्थ के साथ मिलती हैं। उत्तरी पहाड़ी का जो क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, उसके तरफ से बहुत से जानवर और पौधे मिलते हैं। तो ये एक खजाना है हम लोग का। लेकिन ये खजाना कब तक, मुझे चिंता इसी बात की है कि हम लोग अपने कुछ मकसद के लिए अपने ही धरोहर को नष्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और कि हमारे अभी हाथी, भारत में हाथी का 4 समूह मुख्य रूप से है, जो एज ओल्ड से है, बहुत पुराना है। और इसमें तराई एलिफेंट हिमालय वाले, असमिया जो आसाम साइड के हैं, दक्षिणी जो हम लोग साउथ के एलिफेंट, और बीच में मयूरभंजी एलिफेंट जो उड़ीसा और उड़ीसा के मयूरभंज और सिंहभूम झारखंड के बसिंदा है। अब इन हाथियों के ऊपर ऐसा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हुआ है, और ये क्लाइमेट चेंज हम लोगों ने अपने से डाला है। एक्सेसिव माइनिंग, फॉरेस्ट का नष्ट होना,
हाईवे हम लोग बना रहे हैं तो हाईवे में चौड़ीकरण को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा लैंडस्केप को बर्बाद कर देना। और साथ ही साथ ये उड़ीसा और झारखंड में एक तरह से आदमी के लिए वरदान, लेकिन हम लोग के लिए बायोडायवर्सिटी के लिए नुकसानदेह चीज है, वो है मिनरल। जो खोजिए हर मिनरल इस भाग में है। यूरेनियम की खान यही है जो एलिफेंट बेल्ट के ऊपर है, कॉपर की खान यही है जो एलिफेंट बेल्ट के ऊपर है। अभी गोल्ड माइनिंग का भी खूंटी के पास मिला है जो कि इसी एलिफेंट जोन में ही है। तो अब ये हाथी सरंडा, कोल्हान, पोरहाट और चाईबासा साइट से या मयूरभंज के इलाका में इतने अधिक डिस्टर्ब हो चुके हैं कि अब ये जहां कभी नहीं थे वहां पर पहुंच गए। इन हाथियों का एक झुंड निकला जो महानदी क्रॉस करके रायपुर के बगल से होता हुआ महाराष्ट्र की तरफ बढ़ गया है, गढ़चिरौली तक चला गया। दूसरा हाथी का झुंड हम लोग के सिमडेगा से निकल करके अंबिकापुर, गुरु घासीदास होते हुए संजय नेशनल पार्क और अभी बांधवगढ़ तक पहुंच गया है। बांधवगढ़ से अब ज्यादा दूर नहीं है, ये पन्ना पहुंचेगा या कान्हा पहुंचेगा या सतपुड़ा तक पहुंच जाएगा। ये हाथी केवल अपना हैबिटेट खोज रहे हैं। आखिर जब हम लोग एक तरफ गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और दूसरे तरफ उनका घर उजाड़ रहे हैं, थोड़ी सी मन में इसकी भी संभावना होनी चाहिए कि एक रोड या कोई भी चीज हम निकालते हैं तो उस रास्ते में जो लोग हैं, जो आदमी हैं, उनको कंपनसेशन उनके खेत का मिलता है, उनकी जगह का मिलता है, उनके घर का मिलता है। लेकिन क्या हम लोगों ने सोचा कि हाथी भी आदमी की तरह ही एक स्टेक होल्डर है? उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? उसको थोड़ी सी जगह, ये सभी डेवलपमेंट वर्क, सो कॉल्ड डेवलपमेंट वर्क को थोड़ा सा उस हाथी के लिए भी छोड़ा जा सकता है, जो कि आप ही के बायोडायवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि हाथी है तो जंगल बहुत अच्छा है, वो जंगल को या वन को बना करके रखता है। इसी तरह से हम लोग के यहाँ कम्युनिटीज के अंदर अभी क्रॉप रोटेशन पर अंतर आ रहा है। इसके चलते हम लोग के यहाँ कम्युनिटीज का ये हालत है कि सरंडा यदि आप जाएं, पूरा जंगल छान मारेंगे आप, लेकिन फ्लाइंग स्क्विरल आपको नहीं मिलेगी। फ्लाइंग स्क्विरल कहाँ पर मिलेगी? आप ततीबा या दूसरे ऐसे गांवों में जो ट्राइबल विलेजेस हैं वहाँ चले जाएं तो उनके गांव में जो बड़े पेड़ हैं उन पर मिलती है, क्योंकि गांव वालों ने उनको सुरक्षा प्रदान किया हुआ। तो अब बायोडायवर्सिटी भी ऐसी जगहों को पहचान रही हैं, पहचान करके रहना शुरू की है जो कि उनके लिए फ्रेंडली है। तो हम लोग को आज ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि यदि अभी हम लोग नहीं चेते, अभी अपने को नहीं बचाए तो भविष्य तो खतरनाक ही होने वाला है। मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत तरह की चीजें आएंगी। मैं बच्चों से ये इनवाइट करना चाहता हूँ कि उनके मन के अंदर यदि कोई सवाल हो, कुछ तरह की चीजें उभर रही हो, तो मैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो बच्चों, सर अभी आपसे बात कर रहे हैं मैन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। होता क्या है, हमने सड़कें बना दी हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, हमने हाईवे बना दिए हैं जहां से हाथी गुजरता है, और उसके कॉरिडोर को हम, उसके घर में हम घुस गए हैं। तो सर बता रहे हैं किस हिसाब से हाथी फिर वहां से मूव करके किस तरह से पाना की ओर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, जहां वो पहले नहीं रहता था। तो वो वहां से पलायन कर रहा है। तो इसको लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल जाग रहे हैं
तो सर ने पूछा आप पूछ सकते हैं और सर उसके जवाब आपको देंगे। आपके माइक भी ऑन है, आप लोग बस अपना माइक ऑन करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। सस्मिता मैम, या सस्मिता मैम, सर्वेश्वर सर, इफ एनीथिंग, टीचर्स भी पूछ सकते हैं। हाँ, कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी मन में डाउट हो इस संबंध में। पहला हम लोगों ने टॉपिक रखा है भी एलिफेंट मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, जो कि महत्वपूर्ण हो गया है अभी झारखंड और आसपास के सभी भागों में। कैसे ये उपजा है, क्या सर अगर संशोधन जैसे मैं पूछना चाहूँ, क्योंकि एक कुछ सवाल बच्चों ने पहले भी पूछे हैं, मैं उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल उठाती हूँ। सर बच्चों का ये, हाँ, वर्कशॉप में एक बारी हमने जब बात कर रहे थे तो बच्चों ने कहा था कि फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्री हमारी डेवलपिंग कंट्री है, हमें डेवलपमेंट के लिए करनी पड़ेंगी चीजें, एक एसेंशियल कंपोनेंट है। बट एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट, वो क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं? इसमें बहुत ही अच्छा चीज है ये। सर टू एड्रेस दिस मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, एज अ बच्चे ये लोग क्या कर सकते हैं, ये कैसे अवेयरनेस, या किस टाइप की अवेयरनेस, या किन विषयों के बारे में ये जागरूक कर सकते हैं लोगों को? इसमें एक तो फैक्टर आता है कि जो हमारे सरकारी पदाधिकारी या वन पदाधिकारी, उनको फ्रंट में आना चाहिए था कि एलिफेंट को भी कॉरिडोर दिया जाए, उसको भी राइट ऑफ पैसेज है, उसके भी जो फॉरेस्ट है जिनमें कि भोजन खत्म हो चुका है, उसको फिर से रीजेनरेट करने का प्रयास किया जाए। तो ये तो उनका काम था, लेकिन बच्चों के बीच में एक चीज आनी चाहिए कि हमारे जो गांव है, गांव में एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे यहाँ खूंटी एक जगह है, उसके बगल में एक गांव है बनगांव। बनगांव में अभी भी ट्राइबल कम्युनिटी हमारी है, वहाँ धान लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब तक हमारा कोई हाथी आकर के उसमें से खा नहीं लेता है, वो धान काटते नहीं है। आप इस ट्रेडिशन को शायद सोच रही हूँ, कोई भी सोचेगा कि ये क्यों। उन लोगों का कहना है कि इसका मतलब है कि हाथी हमसे नाराज है और हमारे प्रसाद के रूप में हमारे खेत में नहीं आ रहे हैं और धान का हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब है अगले साल हमारी उपज कम हो जाएगी। हम लोग ने बहुत बार उन लोगों के बीच में ये किया, और एक बार तो ऐसा हुआ कि इस क्लाइमेट चेंज के चलते गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ने लगी खूंटी एरिया में, तो ये हाथी हमारे निकल करके सरंडा की तरफ चले गए थे। उस समय इनके धान के सीजन में, जो गर्मा धान का सीजन होता है, उस समय ये हाथी थे ही नहीं, तो खाते कहाँ से। तो हम लोगों ने उनसे कहा था कि आप लोग हाथी का एक मूर्ति बना करके उसको पूजा करके उसको धान पहले दे करके उसके बाद आप काटिए। तो उसमें जो बैगा था उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम लोग इस तरह से कुछ उन्होंने उपाय किया। तो कम्युनिटी हमारी ऐसी नहीं है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी के एंटी है। केवल एक ही चीज आती है, सवाल आता है कि हाथी भी रहे और आदमी भी रहे, दोनों का मेल मिलाप कैसे रहे, दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे आधारित हो जाए, इसी की आवश्यकता है। आज यदि हाथी है किसी भी वन में, तो उस वन में उसका जो जहाँ जहाँ डंग वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहाँ पर सीड भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो पुराने पेड़ों को हटाता है, नए पेड़ों को उगने का मौका देता है।
इस तरह से एक वो रिस्टोर करता है फॉरेस्ट एरिया। तो इस चीज को लेकर के बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में, गार्जियन के बीच में एक अवेयरनेस की जरूरत है कि हाथी भी आप ही का साथी है। केवल उसको यदि यदि एक चीज हम ये करते हैं कि हाथी कभी भी खेत में दिन में नहीं आता, रात में 8-9 बजे 10 बजे के बाद में आता है और भगाने पर खेत से निकल जाता है। वो भी जानता है कि हम चोरी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और जितना वो धान खाता है उससे उसका पेट भरने वाला नहीं है। मेन फूड तो उसको फॉरेस्ट के अंदर चाहिए। जैसे हम लोग को दाल भात के साथ में एक चटनी की जरूरत होती है, अचार की जरूरत होती है, उसी तरह से टेस्ट ऑफ चेंज है। सॉरी। तो ये इस तरह से हम लोग को कुछ लेना होगा। और अभी यदि हमारे यहाँ मवेशी जो चल रहे हैं, एक कोई जंगल है जहाँ हाथी भी है और हमारे मवेशी भी हैं, एक एस्टिमेट यदि बच्चे लगा करके देखें कि एक उनके गांव में यदि 1000 मवेशी है और एक मवेशी करीब 10 से 15 किलो चारा रोज खाता है, तो 15 किलो मल्टीप्लाइड बाई 100, उतना चारा फॉरेस्ट से आना चाहिए रोज उनके लिए। उसके अलावा हाथी भी है। तो आपको ये सोचना होगा कि गांव कैसे ही अपने जंगल को इतना समृद्ध रखे कि हाथी भी रहे और आपके चराई भी होती रहे। तो एक एरिया को खोलिए, दूसरे एरिया को बंद कीजिए, तो ये पंचायत के अधिकार क्षेत्र में है, ये कर सकते। तो ये बीच में कुछ अवेयरनेस की जरूरत होगी, लोगों को समझाने की जरूरत है कि ये यदि हाथी है तो जंगल है, जंगल है तो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां हैं तो मेडिसिनल प्लांट है जो कि इनके ही काम का है। यदि जंगल है तो इनको रहने के लिए क्लाइमेट का भी एक असर है, पानी का भी असर है, हर कुछ का असर है। इसलिए उनको इस ओर देखना होगा कि हाथी हमारा साथी है, दूसरे जानवर भी हमारे साथी हैं, न कि दुश्मन। हम लोग केवल अभी वन विभाग या कहीं भी कोई भी क्या कर रहा है, जिस गांव में हाथी आया वहां से भगा करके दूसरे गांव की ओर कर दिया गया, वो वाले गांव वाले फिर उसको भगा करके तीसरे गांव में पहुंचाए। अब वो अपना रास्ता भटक गया और रास्ता भटकने के साथ वो एग्रेसिव हो गया और वो फिर मार धाड़ जितना भी है तोड़ फोड़ करने लगा, लोगों को उठा कर पटकने लगा। हमारे यहाँ पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर करीब 200 हाथी है। अभी भी जंगल चूंकि इंटैक्ट है, बांस अभी भी इंटैक्ट है, घास अभी भी है। ये हाथी कहीं भी बाहर नहीं जाते, किसी का घर नहीं गिराते, क्रॉप रेडिंग करते हैं, लेकिन किसी का घर आज तक नहीं गिराया इन्होंने। और अननेसेसरी किसी को दौड़ा करके मारा नहीं। जो नजदीक चला गया बहुत अधिक तो अपने प्रोटेक्शन में जरूर हमला करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो एक एग्जाम्पल है हम लोग का, यदि हमारा फॉरेस्ट इंटैक्ट रहे तो ये हाथी भी रह सकते हैं। अब यदि हाथी हैं तो दूसरे जानवर भी रहेंगे और एक इकोसिस्टम अप्रोच में हम लोग फिर से अपने को समृद्ध बना सकते हैं। मेजर चीज है कि फिर से जंगलों में जो बांस खत्म हो चुका है, घास खत्म हो चुकी है, जो फूड स्पीसीज है वो खत्म हो चुकी है। अभी एक मजेदार घटना मैं बताता हूँ, बच्चों को शायद पता नहीं होगा, मेरे पास वीडियो तो है, कभी मैं शेयर कर दूंगा नेहा को। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर इलाका में 8-10 हाथी का एक झुंड गांव के पास से गुजरा। उन लोगों को महक लगी शराब की, जो कि महुआ को फर्मेंट करके बनाया जाता है, और उस महुआ को इन्होंने फेंक दिया था गांव के बाहर। ये हाथी आए और सभी महुआ खा गए। महुआ खाने के बाद इनको नशा हो गया
और ये जैसे नशे में आदमी झूमता है उस तरह से जंगल में झूमते हुए दिखाई दिए। कुछ तो गिरे पड़े भी थे, लेकिन जिन हाथी को पहले होश आया, उन्होंने क्या किया कि बगल में जो भी जंगल में लैंजन का जो वृक्ष होता है, जिसको चिरौंजी कहा जाता है, चिरौंजी की बार्क को उन्होंने निकाला और इन हाथियों जो कि बेहोश ऐसे थे उनके मुंह में डाल करके उनको खिलाया, और ये फिर से सभी हाथी तंदुरुस्त हो गए। दे नो द ट्रीटमेंट। तो ये भी इनमें इतनी अधिक समझ है, इतनी अधिक चीजें हैं कि वो आदमी के साथ एक अच्छा व्यवहार के साथ में रह सकते। तो हमारे लिए अवेयरनेस की ये जरूरत है। थैंक यू सर। एंड सर ने जैसे बोला है, अवेयरनेस बिटवीन अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोडिपेंडेंस is important. So with this, I think if you have any more questions with sir, please आप लोग please feel free to ask right now. If there is anything, आप लोग अभी पूछ सकते हैं। सर नमस्कार, मैं सर्वेश्वर। हाँ कहिए। हाँ सर, हमारा जो टाटा स्टील मेरा मंडली है जो उड़ीसा में है, यहाँ हमारा बहुत सारे हाथी का एक कॉरिडोर है इधर, माने जो हमारा प्लांट है, प्लांट के साइड में वो ऐसे 10 दिन 15 दिन ऐसे बीच बीच में जाना आना करते रहते हैं। और बीच बीच में जैसे आप बोल रहे थे कि वो धान का जो खेती है, और बीच में कभी कभी गांव में भी घुस जाते हैं, और कुछ डेथ केस भी हर साल मैंने फाइल हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और कुछ हाथी भी एक्सीडेंट में मारा गया। मैंने वो जो इलेक्ट्रिक वायर सब लगा हुआ है उसका जो ये पिलर्स है वो छोटा था, अभी उसको गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा किया गया है जिससे उनका कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो यहाँ तो सर हाथी के साथ ऐसे कम्युनिटी का कुछ होता है। तो कुछ ऐसा है क्या सर जो जिसे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम बच्चों को और कम्युनिटी को दे सके? जैसे आप बोल रहे हैं कि एक हाथी का पिक्चर करके वो कम्युनिटी उसका पूजा करे, उसके बाद उसका दान करते थे, या माने अवेयरनेस क्रिएशन के लिए ऐसे कुछ है क्या सर जो नहीं हम इधर कर बहुत सकते? कुछ है, बहुत कुछ है। देखिए, हाथी का एक क्रॉपिंग स्ट्रेटजी हम लोग कहते हैं। क्रॉपिंग स्ट्रेटजी कही जाती है कि हाथी को जितना फूड चाहिए वो यदि एक जंगल में रुक गया तो जंगल समाप्त हो जाएगा। तो वो करता क्या है कि एक जगह से खाते हुए आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे फिर से 1 साल के बाद ही उस जगह पर पहुंचता है, और उसका अपना इम्प्रिंटेड है उसके मदर के बाद उसके बच्चों में, उसके बच्चों में, और वो अपना रास्ता वो पहचानते हैं। हो क्या रहा है आजकल हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं कि एक क्रॉपिंग स्ट्रेटजी में आगे बढ़ा हाथी, पीछे उसके हटने के बाद में हम लोगों ने वहाँ कोई चीज रेलवे लाइन कर दिया, या गड्ढा खोद दिया, या माइनिंग स्टार्ट कर दिया। ये सभी चीजें हम लोगों ने कर दिया। जब वो घूम करके आता तो दिखता वहाँ है नहीं। अब उसको तो इम्प्रिंटेड है कि हमको यहाँ से वहां तक जाना है। आपके यहाँ उड़ीसा में कंधमाल का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। कंधमाल में जो हाईवे है संबलपुर से कटक के बीच वाली, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग शाम को आकर के हाथी इकट्ठा होते हैं, उनको दोनों ओर ट्रैफिक रोकते हैं, उसके बाद हाथी क्रॉस करते हैं। तो ये हाईवे को बंद किया जाता है आकर के शाम को करीब 5 बजे के आसपास में। हाथी एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं और उसके बाद उनको क्रॉस कराया जाता है। ये नौबत क्यों आती है? यदि उसी समय हम लोग
यदि रोड को चाहे तो एलिवेटेड पर लेके चले जाते, जहाँ एलिफेंट का क्रॉसिंग पॉइंट है, जो कॉरिडोर है जहाँ से वो हमेशा गुजरता है, वहाँ पर उसको पैसेज बना देते। वहाँ पर आपको रोड बनाना है तो एलिवेटेड लेकर के चले जाते, नीचे से उसको क्रॉसिंग पॉइंट रहने देते, तो ये सभी झंझट नहीं आती। मेरा कहना यही है कि एलिफेंट को भी एक स्टेक होल्डर मानिए। जैसे आपने बिजली के खंभे की बात की, जी सर, 15 फुट पर अभी गांव-गांव में सब जगह लगाते हैं, जबकि होना चाहिए इसको 35 फुट वाइल्ड लाइफ एरिया में। गांव में 15 फुट का आपको चल सकता है, क्योंकि आदमी 15 फुट से तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन स्लैकिंग जो होती है वायर की, नीचे चली जाती है 2 पिलर के बीच में, उस समय तो हाथी का जो वायर के बीच में जो आवाज निकलती है उससे वो अट्रैक्ट होता है और सूंड से एक बार टच किया तो वो मर जाएगा। तो ये बिजली विभाग भी ये उसको स्टेक होल्डर मान करके वो काम नहीं किया। हमारा कहना यही है कि कंसीडर एलिफेंट एज एन स्टेक होल्डर, जैसे मैन एक स्टेक होल्डर है, उसको भी समझिए, तो ये आपको प्लानिंग में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि ये जो गांव के बीच से गुजरने का है, अभी छत्तीसगढ़ में एक मेथड इन लोगों ने शुरू किया है कि हाथी आ रहे हैं, खाते हुए निकल गए, कंपनसेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में दे रहा है, उनको भगाया नहीं जाता है, वो आए खाए निकल गए। भगाने से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, और भगाने के क्रम में जो सबसे अधिक डेथ होती है कि आप दौड़ाते हुए हाथी को दौड़ाए कुछ दूर तक, उसमें से एक अचानक हाथी जो बड़ा है वो सेल्फ डिफेंस में खड़ा हो गया और बैक किया, और जो सामने नजदीक आदमी था उसको उठा करके पटक दिया। रीडायरेक्टेड बिहेवियर कहा जाता है। तो इसके चलते ज्यादा डेथ होती है। तो छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं लोग कि उसको जाने देते हैं, खाने दो भाई, खा लिया, आपको जितना है कंपनसेशन हम दे देंगे, लेकिन भगाना मत। भगाने में उसको दूर से आप रहिए, तो जहां जाता है जाने दीजिए। तो एक मेथड ये है। दूसरा है कि गांव का यूथ लोगों का एक स्क्वाड बनाने की जरूरत है, और उनको एलिफेंट बिहेवियर के बारे में बताने की जरूरत है कि एलिफेंट कब निकलता है, कब कब ये होता है, फोर वार्निंग देने की जरूरत होती है। और इस फोर वार्निंग के चलते आपको 50% कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाता है। कहाँ से हाथी आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर से निकल रहा है, ये इंफॉर्मेशन या लोकल रेडियोज के ऊपर या कहीं भी इसको इन्वॉल्व करना होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी और लोकल पंचायत लेवल पर भी, कि ये इंफॉर्मेशन पास ऑन किया जा सके एक से दूसरी जगह पर कि एलिफेंट का मूवमेंट किधर है, जिससे कि पहले से ही तैयारी होगी और उसको आगे नुकसान कम होगा। तो अब हम लोग तो अपने उसके माइग्रेटरी जो क्षेत्र है, जो रास्ता है, उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने चाहे तो फैक्ट्री बन चुकी है या हाईवे निकल चुकी है या दूसरे अदर स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, ठीक है, वो भी मैन के लिए ही जरूरत है। एलिफेंट को भी एक समझ लेते हम लोग कि वो भी हमारे साथ में एक है, तो उसके लिए जगह बना देते, उसके लिए भी प्रबंध कर देने की आवश्यकता होगी, जो कि एक स्टेक होल्डर के रूप में उसको भी पहचान की जरूरत है अभी की प्लानिंग। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इफ और भी अगर सर से कुछ पूछना है, if there is anything you can still ask sir. आप लोग चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं।
If not, then आप लोग अभी भी if there is anything, please feel free to ask. Sir is here only for some time, few more minutes actually. बच्चों सर ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, कैसे छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कैसे बताया है कि हमें यूथ को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। तो आपके दिमाग में अगर आइडियाज भी आ रहे हैं, सवाल नहीं आ रहे, आइडियाज भी आ रहे हैं, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, राइट? हम कई बार ही होता है, हम सबने देखा है जब हाथी जाता है, हमारा दोस्त ही है। जैसे पृथ्वी पर रहने का हक हमारा है, वैसे ही उसका भी है। तो अगर वो जा रहा है अपने रास्ते से, तो अगर आपको लगता है कि ऐसे करने से भी बचाया जा सकता है, क्या वो आइडिया ठीक है या नहीं, आप वो भी पूछ सकते हैं सर से। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम। तो आइडिया ये है कि अगर जैसे सर्वेश्वर जी ने पूछा, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछा। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई आइडिया है, वो कितना सही है या नहीं है, आप वो भी पूछ सकते हैं। यदि अच्छी कोई ऐसी आइडिया हो जिसको कि हम लोग दूसरे जगह इम्प्लीमेंट कर सके, मोस्ट वेलकम। कहीं दूसरे जगह हम लोग उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जरूर सर। कई बार ये होता है कि एकदम से समझना, एक जानकारी को प्राप्त करना, और फिर उसके बाद कई बार बच्चों को बहुत सारे आइडियाज आते हैं। वो लोग हमारे साथ शेयर करेंगे और हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और अगर किसी बच्चे को बाद में भी डाउट आ रहा है, तो भी वो भी पूछ सकता है, बाद में भी पूछ सकता है। अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया है 3-4 साल से, कि गांव में कंपनसेशन दिया जाता है वाइल्ड लाइफ का। फसल सबको अभी इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ रही है, तो गांव में जो एक बार क्रॉपिंग होती थी, अब डबल क्रॉपिंग होने लगी। लोगों का नुकसान ज्यादा हो रहा है वाइल्ड लाइफ के चलते, खास करके हिरन, बंदर और सूअर के चलते ज्यादा। और सबसे अधिक अभी आजकल परेशानी हो रही है नीलगाय के चलते। हाथी तो अपनी जगह पर है ही है, तो हाथी सभी क्षेत्रों में नहीं है, कुछ ही क्षेत्रों में है। तो हम लोगों ने एक चीज पाया कि जितने भी ऑल्टरनेट क्रॉपिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए गांव में, यदि गांव में जो ट्रेडिशनल खेती है उनके पास यदि कुछ बेकार लैंड है, तो ऐसी खेती भी वो करें जो कि उनको कैश क्रॉप के रूप में हो, और जिसको कि वाइल्ड लाइफ नहीं छूता है, नहीं ये करता है। जैसे कोई भी एरोमेटिक प्लांट, लेमन ग्रास हुआ, पामारोजा वगैरह, ये सब जितने भी एरोमेटिक ग्रासेस हैं, उनको कोई भी वाइल्ड लाइफ नहीं छूता है, कोई खाता भी नहीं। यदि इसको प्रमोट करके गांव में, और इसका ऑयल निकाल करके, इसकी जो बहुत अच्छी इंटरनेशनल मार्केट भी है, इसकी ओर एक ध्यान जाना चाहिए। हम लोग ने अभी पलामू टाइगर रिजर्व के करीब 8-10 गाँव में ये शुरू किया है, और एक डिस्टिलेशन यूनिट भी लगवाया है, और ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसी तरह से जितने भी लेमन जाति के जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, या नाशपाती ये हो गया, मौसमी वगैरह, जो भी उस जाति के हैं, लेमन ग्रास जाति के किसी भी पौधे को, उसकी वैरायटीज को कोई भी वाइल्ड लाइफ नहीं छूता है। तो यदि लेमन की प्लांटेशन कोई भी किसी भी किसान को उसके जंगल के नजदीक जो खेती करता था, तो जो सब बर्बाद हो जाता है, तो उसके जगह पर यदि लेमन का प्लांटेशन करके उससे वो इनकम जनरेट हो सकता है। तो बहुत से अल्टरनेट क्रॉपिंग सिस्टम को भी जनरेट किया जा सकता है, इसके साथ लिंक किया जा सकता है, टू रिड्यूस मैन एनिमल कंफ्लिक्ट। Thank you so much, sir, for sparing out your time and joining us and sharing so many examples with us to address man-elephant conflict. I'm sure it was such a learning experience for all the students and teachers who are present here.
There are many students who have joined from the single link. So हमें link चाहे कम दिख रहे हो, but there are many students who have joined, and thank you so much, sir. And in case we get any specific queries related to this, हम आपको जरूर forward करके आपसे उसके ऊपर suggestions लेना. Sure. Most welcome. And I'd like to remain in contact with this group. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और जो मौका दिया है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. और जैसे सर ने कहा कि अगर आपके दिमाग में, क्योंकि आप बच्चे हैं, आप लोग बहुत ब्रिलियंटली सोचते हैं, आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आया है तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. और सर ने जैसे कहा है कि वो जरूर ट्राई करना चाहेंगे अपने नए विलेजेस में कि कैसे हम उसको भी अपनाकर कैसे, क्योंकि आइडिया क्या है, हमें वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है और हमें अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है. तो दोनों के बेनिफिट के लिए क्या आइडिया है वो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आइडियाज सोचने से ही आते हैं. एंड यू ऑल आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. आप सोचिए और प्लीज अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. अब इसके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी रवि सर को कि वो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स एंड वे फॉरवर्ड दें. Thank you, Neha. Thank you very much. Before, I would like to just show the status of the post-assessment. Ravi, can we thank sir because he's not well, and it was nice having so that he can leave and we can continue with the students. Yeah, okay. So thank you very much for joining us today. Although you are not keeping well, but still you've taken out time to address on biodiversity and mostly on the human-elephant conflict. Also, I would like to thank the students and the teachers who have joined, and obviously my colleagues from Tata Steel Foundation and Tata Steel Teri for the continuous support for making this great success. Thank you so much, sir. Thank you very much. Yeah, thank you so much. If we have any more questions, then we will definitely contact once we get questions from the students. Thank you so much, sir. Most welcome. Thank you very much. Then I'll Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Requesting all teachers and students to please stay back. Also, please switch on your camera in the meanwhile. Yeah, so can you see my screen? So the link Yes, of the Ravi. post assessment was shared with you all in WhatsApp groups. So once you give in your details, you'll get the questions in this manner in all the three languages, English, Hindi, and Odia. So I request all the about 30 to 40 students from each school to please fill up this question. And for showing this status, I would just like to share location-wise status about it. So this is the present scenario of the post-assessment survey. From Novamundi, we have only 47. From Joda to Khanbon have no entries till now. From Charia, only 2 students have filled up the form. From West Bokaro, there is 26. Angul, there is 6. Jajpur, 14. And Sukinda, 0. So this is the current status of the post-assessment. So I'd request all the teachers to please request all your students to kindly fill it up. Lastly, I think we have one expert speak session left, which is to be scheduled in the next upcoming 2 to 3 days. We'll just let you know the dates and share the link as well. Monvi, over to you. Thank you, Ravi. And in fact, I have shared the link once again, which Ravi sir has just mentioned. And this is a very, it's not a very good good status as of now, I would say, because आप लोग सब फॉर्म जैसे हम लोग ने बोला है, एक स्कूल से वी नीड you have filled up, so हम लोग को वही चाहिए, सेम क्वेश्चन है, आप लोग का बस अपना अंडरस्टैंडिंग से आप लोग को फिल अप करना है, आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो आपके जैसे
6, 7, 8 से एटलीस्ट 15 स्टूडेंट्स, तो एक स्कूल से हम लोग को 45 स्टूडेंट चाहिए, जो कि हम लोग को एक स्कूल से भी नहीं मिल रहा है। किसी ने दो बस एक लोकेशन, that is just one location that we have shared, but we are counting it school wise. So please, I would request everyone to please fill up this form again and again. And जिन लोगों ने fill up किया है, thank you so much for filling it up. And also I would request everyone to kindly switch on their video so that we can take a group photograph. I can only see Uday. आप लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, सस्मिता मैम भी ऑन कर लीजिए. Because Sasmita ma'am, thank you for joining from RBC on behalf of RBC's girls. I mean, this is where you give us an example of reaching the unreached. So thank you so much for that. And I hope आप इन सब से आप लोग को भी इंस्पिरेशन हो, आप लोग को मोटिवेशन एंड एग्जाम्पल मिले आपके डे टू डे एक्टिविटीज में भी. एंड जैसे सर ने बोला है, हम लोग अपना खुद से भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, खुद से भी वी कैन इनिशिएट आवरसेल्व्स इन द टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एंड कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, हम लोग अवेयरनेस कैसे रेज कर सकते हैं, एंड हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बिकॉज इट इज वेरी कोडिपेंडेंट. क्योंकि unless we save it, unless we save flora and fauna, we are also it's a difficult place for us also to live in. तो अपनी खुशी के लिए we have to protect our both human beings and both mankind and both animals as well. So with this we come to an end of this session. And also we wanted to check with you all if you could play switch on your mic and just let us know कि आप लोग का, हम लोग ने एक क्वेरी भेजा था कि आप लोग का एक्सपर्ट सेशन हम लोग का लास्ट है, and we are planning it to do on the 2nd of Feb. हम लोग 2nd of Feb significantly, I mean, why we have put it as 2nd of Feb, because that's the World Wetland Day and the topic is biodiversity. That is our last session left because we wanted to make it important and we wanted to make it more valuable आप सबके लिए, इसीलिए हम लोगों ने 2nd Feb को रखा है. जो जिसके लिए we wanted to check the timing. If 2:30 to 3:30 is fine with you all, 1 घंटे का है. If that is okay with you all, then because we have got some query कि ये 5 बजे ही होगा, so I mean 5 बजे कोई free रहेगा, but depending on sir's availability also we have to check कि because sir, I mean जो हम लोग का expert है, he is also he has also because he is, I mean he is himself a conservationist. So and because it's a wetland day, so he is also not available at the time that we used to have. So if we can have it around say 2 to 3 also, I think please let us know the time here itself if that is okay. आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में अपना टाइम लिख दीजिए. 2 to 3 PM हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं. मीनवाइल आप लोग प्लीज अपना माइक माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लोज ग्रुप है. हम लोग इतने 15 सेशंस अभी तक ये कर आ चुके हैं. तो I mean by now we all know each other. हम लोग मे बी वर्चुअली जानते हैं, but we do know, I always see Riya, Padmini and Govardhan sir, everyone, we see them here. So it's very heartening, I mean for us to in fact see them, see everyone who participates enthusiastically and who participates every time. So Sasmita ma'am, thank you so much, aapne camera on kiya hai, but I would like to have a group picture and everyone please switch on your camera. मुझे बस रवि सर और उदय का ही फोटो दिख रहा है, वीडियो ऑन है बस, और किसी का मुझे ऑन नहीं दिख रहा है. पद्मिनी मैम का दिख रहा है, गोवर्धन सर दिख रहे हैं.
ओके, व्हाट अबाउट मीनवाइल प्लीज आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए टाइम का, इफ इट इज ओके विथ यू ऑल 2 to 3 PM, if it is fine. Sorry. Yes, No, ma'am. ma'am. Actually, Okay. our online class will end at 2 o'clock, exactly 2 o'clock. Okay, For me, okay. it's this one. I'm having a kid also. I have to give him a food now. So Right, I right, thought sure, if sure. it go for 2:30 to 3:30, okay. Won't give me half an hour or 1 hour. Right, It's right. good. ठीक है मैम, 2:30 to 3:30 ठीक है। या अंशुमन बेहरा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्लीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। एनीवन? अभी भी मुझे सारे बच्चे नहीं दिख रहे। पद्मिनी मैम, गोवर्धन सर, मुस्कान ही दिख रहे हैं। अभी तक मैंने वीडियो अपना ग्रुप पिक्चर नहीं लिया है, सो प्लीज एवरीवन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। आई एम सॉरी, वी कुडंट टेक द वीडियो। सस्मिता मैम, आप प्लीज एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। रिया, इतिश्री, मेनका also has not opened her camera. We want to see all of your pretty faces. So please everyone, just switch on a camera just for once. We will just take a group photo and then you can switch off your camera if it is fine with you all. सस्मिता मैम, आपका कैमरा भी ऑन कर लीजिए। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि आपके थ्रू हम लोग को इतने बच्चों से इंटरेक्ट करने को मिलता है, एंड आई होप दे आर बीइंग एबल टू टेक I mean take this learning. So thank you. Okay, now you can switch off your camera. We have almost taken. So thank you again everyone. And आप लोग का हम लोग वो ग्रुप जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है टीचर्स का, वी विल कीप यू अपडेटेड इन दैट ग्रुप एंड वी विल लेट यू नो. Okay, thank you so much everyone. Take care. Bye bye.